Hello students, welcome to the channel. Today we are continuing our chapter coordinate geometry. पिछली वाली वीडियो में आपने ये सीखा कि किस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं और उसको किसी भी क्वेश्चन पे कैसे एप्लीकेबल करते हैं, राइट? कैसे अप्लाई करते हैं. So now we are continuing our next question. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reason for your answer. Here we are having points minus 1, minus 2, 1, 0, minus 1, 2, minus 3, 0. Quadrilateral we need to find कि किस तरह का quadrilateral बनेगा. So quadrilateral we know it has a four sides. We need to find all the four sides of a quadrilateral. So here A point consider, B second, C third, D last. Let us find AB here. What is the formula to find out distance between 2 points? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर. ए पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा x1 y1 x2 y2, राइट. बी पॉइंट के अंदर जो पहला पॉइंट होगा वो x और दूसरा जो पॉइंट होगा वो y. नाउ इफ ए बी वी वांट टू फाइंड, सो इट इज x2 1 माइनस x1 माइनस 1 whole square plus y2 that is 0 minus y1 is minus 2 whole square under root of 1 1 plus 1 that is equals to 2 2 square plus 2 square 4 plus 4 which is equals to 8 8 का रूट होता है हमारा 2 रूट 2, क्योंकि 8 को आप लिखते हैं किसके इक्वल 4 इंटू 2 अंडर रूट, राइट. तो 4 का रूट कितना आएगा 2. ये आपका क्या बन जाएगा 2 रूट 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेट अस फाइंड BC नाउ. BC we again apply distance formula. Here the first point of B, that is x1 y1 x2 y2. Now under root of x2 x2 is minus 1 minus of x1 1 whole square plus y2 that is 2 y1 that is 0, right, whole square. Here minus 1 minus 2 whole square, 2 minus 0 as it is, minus 2 square 4 plus 4 equals to 8. BC equals to root 8, 2 root 2 again. Now let's find out CD. For CD, first we take C point as x1 y1. Next D point we take x2 y2. Now here again we apply the formula x2. The value of x2 we have here minus 3, right, here minus 3. Then substitute it here. Then next is minus sign. x1, value of x1 we have here minus 1. Substitute here whole square plus y2 that is 0 minus y1 that is here 2. Now we need to solve it. minus 3 plus 1 का होल स्क्वायर, राइट. माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है, यहाँ से माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू रूट 8. Value of this is 2 root 2, right. Now third, that is also 2 root 2. Now let us find out AD. The first coordinate, that is we consider x1 y1 and second coordinate we consider x2 y2, right. Now here let's solve this. Under root of x2 minus x1 whole square प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 0 0 माइनस ऑफ माइनस 2, राइट, होल स्क्वायर. इट्स अंडर रूट ऑफ here minus 3 minus minus plus 1 whole square minus 3 plus 1 whole square minus minus plus 2 whole square, right. Now here minus 3 और plus 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा साइन आएगा बड़े वाले का, minus 2 whole square 0 plus 2 2 whole square 2 square 4 4 plus 4 which is equals to root 8. Answer is 2 root 2. Next
AB equal to BC equal to AC equal to AD. From here we say it is a rhombus. Now let us find out AC also. The first point we consider x1 y1, second we consider x2 y2. Now here again we find out the distance formula, x2 minus 1 minus of x1 minus 1, right, whole square, plus y2 2 minus y1, that is minus 2 whole square, under root of, we have minus 1 and here minus minus plus 1 whole square, 2 minus minus plus 2 whole square, under root of 0 plus 2 that is 4 whole square. It's here 4 square under root 16, 16 का square root कितना होता है 4. Now let us find out here BD. Again apply the same formula with coordinate. First coordinate को हम मानते हैं x1 y1, दूसरे coordinate को हम हमेशा मानते हैं x2 y2. Now here diagonal BD, that is minus 3 minus 1 का whole square, right, plus y2 की वैल्यू कितनी है 0 and y1 की वैल्यू कितनी है 0, 0 minus 0 का whole square, right. So here we get 0 minus 0, 0 ही रहेगा. Now here minus का 3 minus का 1, it's minus 4 whole square, plus 0 minus 0, 0 का whole square, minus 4 का whole square, that is 16. 16 का रूट कितना आएगा 4. Here you can see सारी साइड इक्वल थी, डायगनल्स भी इक्वल हैं, we say it is a square, right. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की सारी साइड्स इक्वल हो, साथ में डायगनल्स भी क्या हो इक्वल हो, तो हम उस फिगर को क्या बोल देते हैं, that quadrilateral it is a square, right. Now next is here, in the type of quadrilateral form, if any by the following point, we have a point 4 comma 5, B is 7 comma 6, C is 4 comma 3, D is 1 comma 2. Let us find out AB here. So what is the formula, x2 minus x1 का whole square, 4 5 x2 y2 7 6, formula under root of x2 that is 7, minus sign, then x1 we have 4 whole square, plus y2 6 minus y1 5 whole square, right. Now here under root of 7 minus 4 3 whole square, 6 minus 5 1 whole square, 3 square is 9, 1 9 plus 1 10. Same as it is, we can find out the distance between BC, under root of, here we take value x2 की वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पर आपके बार 4, राइट, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट. नाउ हेयर वी सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर, under root of 3 का square 9, 3 का square 9, it's under root 18, right. So it is 3 root 2. Now the next is, let's find out CD. CD how to find? First point consider as x1 y1, next point consider as x2 y2, right. Now here CD is equal to under root of, we have 1 minus 4 का whole square, right, then we have 2 minus 3 का whole square. Now under root of 1 minus 4 that is 3 whole square, 2 minus 3 that is 1 whole square, 3 ka square 9 plus 1, 9 plus 1 that is equals to 10. Now here we find out AD, distance between A and D, first point x1 y1, next point x2 y2, under root of x2 minus x1 का whole square, हमने किया 1 minus 4 का whole square plus 2 minus 5 का whole square, right. फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया 1 माइनस 4, सेकेंड में से सेकेंड को माइनस किया 2 माइनस 5, अंडर रूट ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये आएगा 9, 9 प्लस 9 18, 18 का रूट बनेगा 3 रूट 2, राइट. नाउ लेट अस फाइंड हियर डायगोनल्स AC. AC की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट x1 y1 x2 y2, C के जो पॉइंट होंगे
x2 y2, right? Now here we find out the distance under root of here x2 4 minus 4 का whole square, right, plus 3 minus 5 का whole square, right, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 जीरो, 3 माइनस 5 आएगा माइनस का 2 होल स्क्वायर, जीरो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का रूट होता है 2. देन वी फाइंड आउट हियर बी डी ऑल्सो. आप लगा सकते हैं फॉर्मूला x1 y1, दूसरा x2 y2, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, 1 में से क्या माइनस करेंगे 7. Then we subtract 2 minus 6, right? Now here we have 1 minus 7, that is 6, minus 6 का whole square, 2 minus 6, that is minus 4 का whole square, 6 36, 4 का 16. It is here 52. Answer is 2 root 13, right? So here we see AB किसके इक्वल आ रहा है, CD के इक्वल आ रहा है, और BC किसके इक्वल आ रहा है, AD के इक्वल आ रहा है, right? These are equal, these all are equal, but diagonals are not same, so it is a parallelogram. Now what is collinear? What do you mean by collinear? If we have 3 point A B C, then if they lie on a same line, अगर वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, collinear. We have AB plus BC, it should be equal to AC, right? कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तीनों डिस्टेंस निकालना, दो डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होगा, तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा. इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ अ टू स्मॉलर सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट, देन पॉइंट्स आर collinear, right? Now determine by distance formula whether the points are collinear or not. So here first we consider the point as minus 6 2. A point consider करते हैं इसको, 2, 3 को B point, 10, 8 को C point. A point, B point, C point. We know that if the sum of length of a two is equal to the sum of the bigger segment, तो हम कहेंगे वो collinear होगा. दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए. तो फॉर दिस लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑन ए बी. फर्स्ट वी अप्लाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट. सेकेंड पॉइंट हम मान लेते हैं x2 y2, एक पॉइंट को हमने माना x1 y1, दूसरे को x2 y2. अप्लाई, x2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस का माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, राइट. 2 प्लस 6 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 8 plus 5 whole square, 64 plus 25, which is equals to under root of 89, right? Now we need to find out here BC. BC, first point we consider x1 y1, second point we consider x2 y2. Now here we have 10 minus 2 का whole square plus next is y2 minus y1, 8 minus 3 का whole square, right? It's under root of 8 square plus 5 square, 8 square 64, 5 square 25, add them, what we get here 89. Now what do we find, we need to find out AC. now A से C तक का डिस्टेंस, आपने AB निकाल लिया, BC निकाल दिया, और अब AC फाइंड आउट करना है. सो हियर फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2. नाउ डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 10 में से माइनस ऑफ 6, राइट. देन प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट. देन नेक्स्ट इज हियर 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 की वैल्यू कितनी है हमारी 16, और यहाँ से आएगा ये 8 प्लस 2, राइट. 10 प्लस 6 इट इज 16, एंड हियर 8 प्लस 2 that is equals to 10, right. Now after this 16 square which is equals to 256, 10 square which is equals to here 100, 256 plus 100 it is equals to 356. Now we can find out the factors of this, that is here 2 into 2 into this. Let's make the factors here. So here we what we got, क्या आता है हमारे पास, जो 2 into 2 होगा, क्योंकि ये दो बार है तो इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, 4 का कितना आएगा 2 into अंडर रूट ऑफ 89, राइट. नाउ नेक्स्ट AB
और बी सी. कैन यू सी दिस? अंडर रूट 89 और अंडर रूट 89 का सम कितना होता है? 2 अंडर रूट 89, राइट? So here we have 89 plus 89 which is equals to 2 root 89, right? Now this is equals to right hand side. So left hand side, sum of 2, that is equals to third one. What we say here? That the points are collinear, right? Question is determine whether the points this and this are collinear or not. Now we have A point, B point, C point, right? तो first we find out AB. तो यहाँ से हम AB का distance निकालते हैं 2 minus of 1 whole square plus y2, that is 3 minus y1. y1 is here 5 whole square. 2 minus 1 कितना आएगा? 1 square. 3 minus 5 कितना आएगा? minus का 2 का square. It's 1 plus 4 which is equals to root 5, right? Now let us find BC. So what is the formula to find out distance between 2 points? Again, that first point को x1 y1, second point को हम मानते हैं x2 y2. Here BC is equal to under root of y2 minus y1 minus 2 में से माइनस करेंगे minus of 2, right? y2 की वैल्यू है -11, माइनस का 3 होल स्क्वायर. नाउ हेयर -2 कितना आएगा? 4. 11 minus 3 माइनस 11 माइनस का 3 कितना आएगा? माइनस का 14. अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 14 स्क्वायर दैट इज 196. एट देम 212. So this is NCERT question. 4 into root 3 that is 2 under root 53. Now we need to find out here BC, AC. A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं एक्स वाई वाई वाई, दूसरे को मानते हैं एक्स टू वाई टू. सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ -2 माइनस ऑफ माइनस का 1 का होल स्क्वायर, y2 -11 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, राइट? -2 -3 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर. 11 -11 -5 क्या होता है? -16 का होल स्क्वायर. इट्स 9 प्लस 256 which is equal to 265. The sum of 2 is not equal to another one. So here we say they are not collinear, right? So here this third part you can do it yourself, right? आपको पहले AB का डिस्टेंस निकालना है, right? तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, राइट? देन सॉल्व करते हैं. 3 प्लस 3 6, 6 स्क्वायर 36, 4 का 16, ऐड किया 52, इट इज 2 रूट 3 13. नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम BC. BC का फॉर्मूला फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2. फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? देन 0 माइनस 3 आएगा, -3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 13. नेक्स्ट वी फाइंड आउट हेयर CD that is here first point x1 y1, second point here x2 y2, under root of x2 that is -1 minus of 0 का whole square, right? y2 -4 minus of y1 3 का whole square. Now here -1 minus 0 1 minus 1, then whole square, -4 minus 3 -7 का whole square, 1 का square 1, 7 का 49, 49 plus 1 it is 50. CD की वैल्यू आ गई 5 root 2, right? Now we have last that is AD. Now we find first point x1 y1, second point consider करते हैं x2 y2. We need to find out AD, x2 minus x1 का whole square, right? y2 minus y1 का whole square, right? -4 -5 का whole square. माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 करोगे तो कितना आएगा? माइनस नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, ये आ जाएगा -9 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 81, ऐड करते हैं 85. सो नाउ लेट अस फाइंड डायगोनल्स. सो डायगोनल्स AC अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. पहले पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, सेकेंड पॉइंट को मानते हैं x2 y2, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस ऑफ 3, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 3, 3 minus 5 that is whole square, 3 square, 3 minus 5 minus 2 का whole square, 3 का square 9, 2 का square 4, 9 plus 4 कितना आ गया? रूट 13. तो आपने यहाँ देखा AB की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई. एज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, वी से दीज आर collinear, राइट? बट आपको कोऑर्डिनेटर निकालना है. सो हेयर वी से
दैट द डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, राइट। पीछे वाले जो क्वेश्चंस किए थे उनकी तरह आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन इज हियर this very important question. Find the value of y for which the distance between the point p and q is 10. So p q का डिस्टेंस किसके इक्वल है 10। नाउ पी क्यू को 10 मान लेते हैं। अब आप बताओ पी क्यू का डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस? दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। सो हियर x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10, y2 की वैल्यू y। पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। पी क्यू की जगह हमने रखा 10 अंडर रूट ऑफ x2 वैल्यू इज 10 माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस ऑफ y1 की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 करेंगे 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ 10 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, रूट है ना। तो अगर रूट है तो रूट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं दोनों तरफ आपने क्या किया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वैसे तो लॉजिकली यही होता है, रूट को ऐसे नहीं लाते, बट हाँ ऐसे कह देते हैं कि रूट का अपोजिट क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने दोनों साइड क्या किया स्क्वायर किया। 10 का स्क्वायर हो गया 100, इट इज इक्वल्स टू 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। नाउ हियर 164 प्लस दिस 64 को इधर ले जाएंगे -64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 100 माइनस 64 किसके इक्वल आएगा 36 प्लस 36 इधर जाएगा तो -36, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 9 माइनस 36 कितना आएगा 27, किसके इक्वल 0। अब आप देखिए दिस इज व्हाट वी हैव अ क्वाड्रेटिक, राइट। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर करो 27 के, ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर आपके पास आए 6 और मल्टीप्लाई करने पर आए 27। तो 9 3 जा 27, 9 में से 3 गया 6y, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में से कॉमन लेते हैं y प्लस 9, -3 कॉमन लिया y प्लस 9 इक्वल टू 0, पूरे में से कॉमन आ रहा है y प्लस 9, यहाँ से बचेगा y -3 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा y प्लस 9 इधर जाएगा -9, y -3 इक्वल टू 0, माइनस इधर जाएगा तो प्लस। Question is find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 5. So from this the question is we need to find out a point. पॉइंट किसके ऊपर है एक्स एक्सिस पर। तो हमने डिस्कस किया था एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है दैट इज हियर, एक्स तो होता है लेकिन वाई नहीं होता, तो एक्स कोमा 0, राइट। अब ये जो पॉइंट है दैट इज इक्विडिस्टेंट है ए से भी और किससे बी से भी। तो आप बताओ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे पी ए, राइट। दूसरा क्या फाइंड करेंगे पी बी, और दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो ए पी किसके इक्वल आएगा पी बी के इक्वल। पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट नाउ। वैसे तो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई, लेकिन ये एक्स एक्सिस पर है, राइट। तो वाई क्या होना चाहिए 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0, राइट। नाउ हियर पी ए इक्वल टू पी बी, अप्लाई द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, to find the length we need to find out distance formula, right। अंडर रूट ऑफ पहला पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं कितना है x2 y2, राइट। नाउ हियर अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है x -2 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट प्लस y2 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू, देन we need to find out BP distance x plus 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। प्लस क्यों लिखा क्योंकि हमने कहा माइनस ऑफ माइनस, राइट। y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है 9, माइनस ऑफ 9 होल स्क्वायर। नाउ वी हैव हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट है हमारे पास तो स्क्वायर करना पड़ेगा। x -2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 होता है 9 का होल स्क्वायर, राइट, -9 का होल स्क्वायर। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
-4x प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 9 का स्क्वायर होता है 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85, माइनस का 4x इक्वल टू 85 माइनस 29, minus 8x equal to 56, x equal to 56 by minus 8 which is equals to 7. माइनस का साइन नीचे डिनोमिनेटर में है तो आंसर कितना आएगा -7, क्योंकि पॉइंट निकालना था -7, 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, 0. नाउ दिस इज अनदर वन, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बी केयरफुल विद दीज क्वेश्चंस कि कैसे इनको करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आता है, अदरवाइज 2 या 3 टॉपिक है तो आप आसानी से कर पाते हैं. पॉइंट हमें गिवन है क्यू 0,1 इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंस किससे है? पी से है और आर से है, राइट. तो क्या कहता है ये क्यू पी किसके इक्वल हो? क्यू आर के, राइट. क्यू पी का फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट ऑफ एयर, हमें फाइंड करना है क्यू आर, राइट. तो ये डिस्टेंस निकालना है, पी आर भी निकालना है, ठीक है. वो बात की बात है. फर्स्ट वी फाइंड आउट द अननोन डिस्टेंस. सो हियर वी हैव फर्स्ट इज क्यू पी इक्वल टू क्यू आर. क्यू पी किसके इक्वल है? क्यू आर. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. क्यू पी की वैल्यू क्या होगी? लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. पहला पॉइंट क्यू का x1 y1 मान लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पी का क्या मान लेते हैं? x2 y2, राइट. नाउ हियर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 5, देन माइनस x1 0, then y2 that is -3, y1 that is 1 minus 1 whole square under root of. Now we have QR में भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, राइट. दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 y2. अब फॉर्मूला लगाइए. फर्स्ट x2 दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 6 minus 1 का whole square, right. Now here squaring both side we have 5 square minus 3 minus 1 का whole square, x square plus 6 minus 1 5 square. So here can you see this 25 plus 16 equal to x square plus 25, cancel out. x square की वैल्यू कितनी आ गई? 4, right. 16 का रूट होता है 4, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी. तो आपके पास आ गया यहाँ पर क्या आर का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2, राइट. अब x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पहले तो आप डिस्टेंस लगा दो. x माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर. x की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 41. नाउ हियर we need to find out PR also. So PR, how to find it? It is here x equal to 4 and p equals to हमारे पास है 5 minus 3. So r that is 4 6. What is the formula to find out the length? We have this PR x1 y1 next x2 y2. तो अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा? p x2 is 4 then minus x1 is 5, right, whole square, y2 which is 6 minus y1 that is minus 3. Now 4 minus 5 that is minus 1 का whole square, 6 plus 3 9, 9 square, 1 plus 9 square 81, 81 plus 1 that is equals to 82. तो आपने दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट किए, राइट. आप एक बार 4 लेंगे और दूसरी बार इस डिस्टेंस को क्या ले लेंगे? -4, राइट. तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है. आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन ईजिली यू विल गेट द आंसर, राइट. So -4 -5 -9 whole square, 6 plus 9 9, 9 का square 81, 9 का square 81, 81 plus 81 that is here 9 root 2. Now last question which is very important one. Find a relation between x and y such that the point x y is equidistant from this. देखो 3 6 और -3 4 से equidistant है. तो find a relation we consider करते हैं यहाँ पर P point, right, on the x axis such that point xy क्या है? इक्विडिस्टेंट है.
तो P पॉइंट x कोमा वाई इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट A, दैट क्यू और आर मान लेते हैं इसको। क्यू है 3,6, आर है -3,4। सो हियर वी हैव इक्विडिस्टेंट, दैट इज पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर, राइट। नाउ पी क्यू अगर पी आर के इक्वल है तो वी अप्लाई द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ हियर x-3 का होल स्क्वायर, पहला पॉइंट x1y1 मानो, दूसरा पॉइंट x2y2 मानो, अंडर रूट ऑफ हियर वी हैव 3 माइनस, देखो x1 की वैल्यू x है तो एज इट इज रख देंगे, ठीक है, प्लस y2 6 माइनस y का होल स्क्वायर, देन इट इज इक्वल्स टू पी आर के इक्वल है, तो पी आर की वैल्यू बोलो। फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर देते हैं x1y1, दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं x2y2। तो लगाओ फॉर्मूला, x2 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू क्या है x, राइट, प्लस y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू कितनी है y, राइट, अंडर रूट ऑफ हियर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। a माइनस बी की एक्सपेंशन क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 6 का 36 माइनस का 12y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो ये फॉर्मूला जो बनेगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। नाउ हियर यू कैन से 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, माइनस का 6x प्लस एक्स वालों को इकट्ठे करते हैं -6x, 8y और 12y, -16 प्लस 36 इक्वल टू 0, ये आएगा -12x, 8y माइनस 12y कितना आएगा माइनस का 4y, 36 माइनस 16 ये आएगा 20 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फॉर्मूला लेते हैं -4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन आएगी 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, राइट। सो दिस इज all about today. If you like the video, please share it with your friends, and it's very useful video, you can easily find it very easy to understand, so that's why please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification of the new videos. Thank you, bye bye.